اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہے اور آج کی ویڈیو کا ہدیہ لیے ہوئے پیش ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر افغانستان کے موضوع پر تبصرہ پیش کیا جائے گا اور پھر جنوبی بحیرہ چین میں جس طریقے سے تیسری عالمی جنگ کے بڑھتے ہوئے سائے نمودار ہو رہے ہیں اس پر بات کی جائے گی۔ جس طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کے کھلنے کے واقعات قریب آتے جا رہے ہیں اس کو بیان کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کرنا مت بھولیں۔ بات کرتے ہیں افغانستان کی، جہاں پر آج 11 ستمبر کے دن جب بہت مشہور واقعات پیش آئے تھے، اسی دن طالبان کی عبوری حکومت حلف اٹھانے جا رہی ہے اور بہت سارے ملکوں کو دعوت دی گئی ہے، گو کہ کسی ملک نے بھی یہ پیشکش قبول نہیں کی ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر ملک ہچکچائیں گے اور پیچھے ہٹیں گے اور طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوں گے، گو کہ پاکستان بھی اس حوالے سے بہت ساری باتیں کر رہا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ پاکستان پر FATF کے حوالے سے کافی دباؤ ہے اور ان تمام واقعات کو لے کر انڈیا پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کر سکتا ہے اور پاکستان پر بڑی بڑی اقتصادی پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ تبصرہ پیش کر چکے ہیں کہ جان بولٹن جو کہ پچھلی انتظامیہ میں قومی سلامتی کے مشیر تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے نیوکلیائی ہتھیاروں کو ہم اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں کیونکہ اس سے کافی خطرہ لاحق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ اس طرف یہ خبریں بھی آئیں کہ ترکی نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے طالبان کو مشورہ دیا ہے، گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہی وہ دجالی قوتیں ہیں جس طریقے سے وہ طالبان پر دباؤ ڈال رہی ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی گئی پیشن گوئیوں کی بھی تصدیق ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد شیطان چیخ بلند کرے گا اور کہے گا کہ تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے، یعنی خواتین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دجال تمہاری خواتین کو گھروں سے نکالنے کی کوشش کرے گا، تمہاری خواتین کو اچک کے لے جائے گا۔ ایک مومن، ایک شخص اپنے گھر میں اپنی عورت کو بند کر کے جائے گا لیکن دجال پھر بھی اس کو چک لے گا۔ تو یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے وہی باتیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ ادھر انڈیا میڈیا کے پروپیگنڈا کی ایک اور مثال آج واضح ہوئی جب ڈاکٹر عبداللہ نے سخت تردید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی حراست میں نہیں لیا گیا ہے، میں آج بھی امن و چین کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں ایک انڈین صحافی نے یہ جھوٹی خبر، جن کا نام نوین کپور ہے، انہوں نے یہ خبر چلائی کہ ڈاکٹر عبداللہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور نامعلوم مقام کی طرف لے جایا گیا ہے، جن سے انڈین میڈیا کے جھوٹا ہونے، فریبی ہونے اور دغاباز ہونے کی تمام خبریں بھی ہمیں ملتی ہیں، اور اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انڈین میڈیا زیادہ تر جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کی کسی بھی بات میں کوئی سچائی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام حالات اس وقت جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ افغانستان میں اور افغانستان کی معیشت کو کس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی منظر عام پر آئیں کہ قطر نے بڑی ہیلپ کی ہے۔ زلمے خلیلزاد جو افغانستان کے خصوصی مشیر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم طالبان کا اور قطر کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اب بھی لوگوں کے انخلاء میں مدد دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں غیر ملکی لوگوں کا انخلاء ممکن ہو سکا ہے۔ تو بہت ساری اچھی خبریں بھی مل رہی ہیں، اور قطر کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، انشاءاللہ ہم اس بات پر ایک ویڈیو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں جس میں یہ بتایا جائے گا آپ کو کہ کس طریقے سے قطر دجالی قوتوں کے خلاف اپنے اس کوششوں کو جاری رکھے گا، اور پھر شعیب بن صالح کا وجود جو ظہور ہوگا وہ بھی ممکن ہے کہ قطر کے علاقے سے ہی ہو۔ اب اپنی گفتگو کا رخ موڑتے ہیں جنوبی بحیرہ چین پر، جہاں ایک انتہائی خطرناک اور عالمی بحران نمودار ہو رہا ہے اور تیسری عالمی جنگ کے سائے نمودار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ساؤتھ چائنا سی پر چائنا اپنا
क्लेम करता है, लेकिन 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में कायम है, उसने ये कहा था कि कोई भी चाइनीज़ दावा इस इलाके पर कबूल नहीं किया जाएगा और ये तमाम का तमाम इलाका इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए मखसूस होना चाहिए। वो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बहुत सारे मामलात मुतनाज़ हैं, जिसमें सूडान के सदर को भी उन्होंने हवाले करने की एक इंतहाई मुतनाज़ा रूलिंग जारी करी थी। तो ये तमाम की तमाम हालात तारीख़ी वाक़यात में मिलते हैं, लेकिन आपको ये बात बताते चलें कि 9 डैश लाइन के हवाले से चीन ये हमेशा से कहता आया है कि उसको हक़ ये हासिल है कि वो किसी तरीके से भी इस इलाके में जितनी भी पेट्रोलिंग होती है या जितनी भी नेविगेशन होती है उसको कंट्रोल करने में हक़ बजानिब है। ये 9 डैश लाइन आपको देख सकते हैं, ये करीबन पूरा साउथ चाइना सी इसमें शामिल है और ईस्ट चाइना सी का भी कुछ इलाका आता है। ऊपर ताइवान का इलाका आप देख सकते हैं, ताइवान के ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन आपको ये बात बताते चलें कि पिछले दिनों चाइना ने कानून पास किया है जिसमें उसने ये कहा कि तमाम के तमाम जहाज़ जो इस इलाके में दाखिल होंगे उनको चाइना से पेश की इजाज़त लेनी होगी, जिसको अमेरिका ने और दीगर दूसरे इत्तेहादी ममालिक जिसमें वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फ़िलीपींस शामिल हैं, इन्होंने रद्द कर दिया है। ताइवान ने भी रद्द किया है। यहाँ ये खबरें भी मंजर आम पर आई हैं कि फ़िलीपींस के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका पहुँचे हैं। डेल्फिन लोरेंजा ये बात कहते हुए हमें दिखाई दिए कि दोनों ममालिक के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है उसको मजबूत किया जाए, मज़ीद मिलिट्री इक्विपमेंट दिया जाए, क्योंकि इस वक्त ख़तरात ये नमूदार हो रहे हैं कि चीन फ़िलिपाइन पर हमला कर सकता है और एक बड़ी जंग नमूदार हो सकती है। जैसा कि हमने पिछली अपनी वीडियोस में बताया था कि एक तैयारा ऊपर उड़ते हुए देखा गया है, गो कि चीन इसकी तरदीद करता है, लेकिन फ़िलिपाइन का ये कहना है कि ये चीनी जहाज़ था जो सर्वेलेंस के लिए नमूदार हुआ और फ़िलिपाइन सी चूँकि दाखिले का रास्ता है साउथ चाइना सी में, इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि इस इलाके में चीन अपनी परवाज़ों को जारी करके एक बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा हो। गो कि चीन इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है और कहता है कि अमेरिका दर हकीकत इस इलाके में जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बात भी हो इस वक्त लगता यही है कि इस इलाके में इंतहाई कशीदगी नमूदार हो रही है और कोई भी मुल्क ज़रा से भी कार्रवाई करके एक बड़ी आलमी जंग के छेड़ने का सबब बन सकता है। तो देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। यहाँ आपको मज़ीद हम खबरें देंगे। ताइवान के हवाले से भी चीन और जापान के ताल्लुकात इंतहाई खराबी की मोड़ पर आते हुए दिखाई दिए हैं, जहाँ पिछले दिनों एक ताइवान के वफ़द ने जापान का दौरा किया और ये कहा कि हम जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, जिससे जापान की हेट्रेड वाज़े होती है चीन के ख़िलाफ़, ये चीन का कहना था। और ये भी उन वाक़यात की याद ताज़ा करते हुए मिलता है जब दूसरी जंग अज़ीम में लाखों चीनियों का कत्लेआम किया गया था। ये भी खबरें साथ साथ नमूदार हुई। पिछले दिनों के 2 चाइनीज़ एक्टर्स पर शदीद तनकीद की गई है। ये लोग जैपनीज़ वॉर श्राइन्स के पास अपनी तस्वीरें खिंचवाते हुए पाए गए हैं, जिस पर चीन के लोगों ने जो नेट सिटीजन्स कहलाते हैं उन्होंने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इन दोनों एक्टर्स का बाइकआउट कर देना चाहिए। गो के इस हवाले से ये दोनों तरदीद करते हुए नज़र आते हैं और कहा है कि ये गलती से तस्वीर शाया हुई हैं, इनका कोई इरादा नहीं था, इन्होंने कोई कॉफ़ी वगैरह वहाँ से ख़रीदी थी और तस्वीर शाया करी थी। यस्कूनी श्राइन के मुतालिक आपको ये बातें बताते चलें कि ये मीजी दौर से शुरू होने वाली उन जंगों के तसलसल से मारे जाने वाले फ़ौजियों का मकबरा समझा जाता है, जहां हज़ारों की तादाद में जापानीज़ फ़ौजी दफन हैं और बहुत सारे फ़ौजी करीबन 1800 के करीब फ़ौजी ये भी कहा जाता है कि कन्विक्टेड वॉर क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने बड़े बड़े जंगी जराइम में हिस्सा लिया। लाखों हज़ारों औरतों की आबरूरेज़ी की गई थी जब चीन पर दूसरी जंग अज़ीम में हमला हुआ तो चीन इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आता है और साथ ही साथ वो ये कह रहा है कि जापान को माफ़ी मांगनी चाहिए। इन तमाम के तमाम वाक़यात पर देखना ये होगा कि जापान क्या वाक़यातन माफ़ी मांगेगा। इधर ये ख़बर भी मंजर आम पर आई, साथ ही साथ कि ईस्ट चाइना सी में और जापानीज़ सी में चीन ने अपना एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा भेजा है और जहाज़ भेजे हैं ताकि
जापान पर दबाव डाला जा सके। गो के चीनी अखबार ये कहते हुए भी हमें देखने को मिले कि जापान के ऊपर ज़्यादा फोकस ना किया जाए क्योंकि जापान इंतहाई कमज़ोर ताकत है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि वियतनाम को दोस्त बनाने की कोशिशें करनी चाहिए क्योंकि अब वियतनाम मिलिट्री लिहाज से काफ़ी मजबूत मुल्क हो चुका है और चीन का एक अच्छा इत्तेहादी साबित हो सकता है। आने वाली जंगों में देखना ये होगा कि वियतनाम की क़यादत किस तरफ से फैसला करती है। पिछले दिनों कमाला हैरिस जो कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो वियतनाम के दौरे पर पहुंची थी और वियतनामी क़यादत को एतमाद में लेने की कोशिश की थी, लेकिन लगता यही है कि वियतनाम भी इस हवाले से गोमगो की कैफियत का शिकार हो रहा है। इधर चाइनीज़ अखबार आज 11 सितंबर के वाक़यात की वजह से ये कहते हुए देखने को मिलते हैं कि चीन मजबूत हुआ है। ये एक परसेप्शन मगरबी इत्तेहादी दे रहे हैं और चीन से इनखला की वजूहात भी अफ़गानिस्तान से भी इनखला की वजूहात में से ये एक बात बताई जाती है कि चीन ने शायद जो तरक्की की है और चीन एक मिलिट्री ख़तरा बन चुका है, इसलिए अमेरिका ने वहाँ से इनखला किया है। इस तासुर को भी चीनी अखबारात ने मुस्तरद करते हुए ये कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है और किसी भी सूरत हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है। चीन तसलसल के साथ तरक्की करता हुआ मिला है। 90 की दहाई से चीन ने अपने इलाकों को मजबूत किया है। इन तमाम वाक़यात से लगता यही है कि याजूज माजूज के खुलने के जो हमें अहादीस मिलती हैं, जिसमें ये भी बातें मिलती हैं कि याजूज माजूज एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर वॉर का आगाज़ करेंगे, उससे भी ये तासुर मिलता है कि चीन और जापान के दरमियान जो लड़ाई इस वक्त होने जा रही है या चीन और अमेरिका के दरमियान जो एटमी जंग के ख़तरात नमूदार हो रहे हैं, वो पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे और फिर शायद पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी। साथ ही साथ अमेरिका में इक़्तिसादी बहरान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उससे क्रिप्टो करेंसी के भी बढ़ने के चांसेस बहुत नमूदार हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया की आलमी मालियाती इक़्तिसादी मार्केटों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनकर उभर रहा है। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट्स में भी कुछ ऐसे अवामिल पैदा होते जा रहे हैं जिससे लग रहा है कि आइंदा आने वाले महीनों में स्टॉक मार्केट्स का भुरकस निकल सकता है। इंतहाई शदीद हालात, इंतहाई नाजुक हालात में पूरी दुनिया दाखिल होती भी नज़र आ रही है, जहां साउथ चाइना सी में होने वाले वाक़यात आने वाले मुस्तकबिल का तयन करेंगे। इधर अफ़गानिस्तान में होने वाले वाक़यात पाकिस्तान और ख़ित्ते के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ज़माने में मुसलमानों को महफूज और मामून रखे। आमीन सुमा आमीन।